Till now we completed 10 lectures on the vector space, basis, dimension and counting of basis, count and dimension analysis. Today we start linear transformation, or we say homomorphism. This is also a homomorphism. Other name of linear transformation is also a homomorphism. So you have any doubts regarding last classes? Any classes? You have any doubt? Today we start linear transformation. For linear transformation, what is required for defining a linear transformation? What is requirement? So we first required at least exactly two vector spaces, that, or we have one vector space that is similar. That means for defining linear transformation, we have a vector space, right? So we have a definition of a linear transformation. We have two vector space, let V over some F and W over F. Both are vector space. B vector space B vector spaces same field over same field F. Now we define a function F from V over F to W over F. So F is said to be linear transformation or homomorphism. या इसको और भी क्या बोलेंगे? If following conditions satisfied are satisfied. क्या कंडीशन होंगी यहाँ पर बताएंगे? होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन पता है ना आपको? यदि ग्रुप थ्योरी में पढ़ी होंगी. All of you know condition of homomorphism. For homomorphism, we have two elements of that algebraic structure. Here V and W is a structure that is vector space. So we need two vectors for all x, y belongs to V. Then f of x plus y is equal to f of x plus fy. यही होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन है. This is a condition for homomorphism. And another condition, if alpha some scalar belongs to field and x a vector, then image of scalar multiplication of x is equal to image of scalar multiplication of image of x. Both are equal. यानी image of alpha x यानी f of alpha x that is equal to alpha of fx. यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन और क्या हो सकती है? और f is a linear transformation or homomorphism, linear
transformation if for all alpha beta belongs to F and x y belongs to vector space V, then f of alpha x plus beta y, this equal to alpha of fx plus beta f of y. यहाँ पर ये भी हमारे पास कंडीशंस होंगी। जैसे एग्जांपल some example, we have a vector space V. If V be a vector space, now we define identity transformation I from V to V over any field over F. I such that I of alpha is equal to alpha. Is a linear transformation or not? Transformation from V into V. ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? यस सर। एंड ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन जो सभी जगह पॉसिबल होंगे। दूसरा क्या है? जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? जीरो ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज all elements maps on 0 defined by 0 of alpha is equal to 0. This is also a linear transformation from V into V. Both are linear transformation. ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? नेक्स्ट एग्जांपल, we define f from R2 over R to R2 over R. Now we define f of xy, this equal to x plus y comma x minus y. This is a linear transformation or not? यस सर। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना। यहाँ पर देखिएगा, जैसे लेट सम x वेक्टर विच इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर xy, तो f of alpha x this equal to f of alpha x small x alpha y, right? So by mapping this becomes alpha of x plus alpha of y, alpha of x minus alpha of y. So we can write alpha of x plus y comma x minus y. So this equal to alpha of f of alpha x. This satisfied the scalar, or we can write xy, or this f of xy is equal to
f of capital X, right? Now we define homomorphism condition. Like we have two vectors. What's two vectors? Any two vectors we consider. Let some x is equal to x1 y1 and y, capital Y, that is equal to x2 y2, right? This belongs to R2 over R or not? Then f of x plus y is equal to f of x plus capital Y. This equal to f of X plus F of Y. x1 plus y1 plus x2 plus y2, right? Sorry, not plus, this is a ordered pair. So x1 y1 plus x2 y2. So this becomes f of x1 plus x2 y1 plus y2, right? So what is transformation? According to transformation, this becomes x1 plus x2 plus y1 plus y2 sum of 4 and then difference x1 plus x2 minus y1 plus minus y2. Now how you write this? We can write x1 plus y1 comma x1 minus y1 plus x2 plus y2 comma x2 minus y2. So this is f of x1 y1 plus f of x2 y2. So this is equal to f of x, f of y, and this is a linear transformation. Yes, sir. सभी को क्लियर है ये linear transformation है? Yes, sir. Okay. Some more linear transformation. We have a vector space of n dimension. So we define a T from Fn over F. F be a field to m dimension, Fm over F. Both are vector space, n dimension and m dimension. Here m is greater than equal to 2. Now we define a transformation a1, a2 and so on an. This total tuples is n, right? Now we define this. What is transformation? How you define? This map to a1, a2, 0, 0, 0. This is a transformation or not? This belongs to Fn over Fm over F or not? Yes. This is not onto, but this is a transformation. Linear transform. If we multiply by scalar, then map, and we add two vectors, then this is also true. We prove this. We can prove. इसको prove किया जा सकता है नहीं?
सर ये A1 A2 बाद 0 0 कैसे हो गए? नहीं, ये हो नहीं गई, मैंने की है अपने अकॉर्डिंग। आप 0 0 नहीं कर सकते, आप इसको सब A1 A2 N पर भी मैप करा सकते, कोई इशू नहीं। ठीक है ना। बट यहाँ पर आपके पास जो M है ये कैसा होना चाहिए, लेस होना चाहिए या ग्रेटर एन से? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है क्या? ग्रेटर देन 2 दे रखा है इसमें तो, क्या इक्वल दे और रखा है? ग्रेटर देन। नहीं, इसमें तो एन एन, इट्स नहीं वो तो दे रखा है, बट एन के लिए कोई कंडीशन है क्या एन से ग्रेटर होना चाहिए? नो सर। नहीं हो सकता है या हो सकता है? इसे वी डिफाइन अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 ओवर R टू R3 ओवर R, क्या कर सकते हैं? T ऑफ एक्स वाई डिफाइन किया जा सकता है। यस सर। किया जा सकता है। यस सर। वी मैप टू एक्स वाई एक्स प्लस वाई, जिससे ट्रांसफॉर्मेशन। यस सर। हो सकता है, या मैं एक्स प्लस वाई की जगह 0 भी पुट कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है उसमें, वो भी पॉसिबल हो यस सकता सर। है। या माइनस एक्स पुट करूँ, माइनस वाई पुट करूँ, या एक्स माइनस वाई करें, या एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एंड 0। तो ऐसे मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस पॉसिबल हो सकते हैं, ऐसा नहीं यूनिक ही होगा। ठीक है ना। तो ये भी एक हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, if A be a matrix। सर ऐसे तो हम m ग्रेटर देन इक्वल टू 3 करके A1 A2 A3 और आगे 0 0 0 भी तो कर सकते हैं। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। नहीं, वो तो ग्रेटर की कंडीशन क्यों लगाई गई है बताइए, बता सकते हैं? वन पे भी पॉसिबल, ऐसा नहीं है। M1 हो जाएगा तब भी हमारे पास, तो फिर क्या हो जाएगा वो, उसमें टपल्स में कोई एक A1 आप और एलिमेंट चूज बाकी कर 0 लीजिए, हो जाएंगे। फर्स्ट एलिमेंट पर मैप करा दें, ऐसा हो सकता है ना। यस सर। फिर वो वन डायमेंशन में हो जाएगा, तब भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं उसमें भी। M ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। और सर n और m में कोई रिलेशन होना जरूरी है या नहीं? नहीं, यहाँ तक तो नहीं होना। यहाँ पर 1 1 ऑन 2 के लिए क्या कंडीशन होना जरूरी है? जब 1 1 ऑन 2 आएगा ना, तब वहां पर रिलेशन होना जरूरी होता है। जैसे हमारे पास कोई भी डिफाइन है एक फंक्शन फ्रॉम, ये भी एक क्या फंक्शन ही तो है ना। यस सर। वी डिफाइन अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं कि कार्डिनलिटी ए की क्या होगी, बी की क्या होगी, कोई रिक्वायरमेंट है? सर 1 1 के लिए कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन कार्डिनलिटी हाँ, ऑफ बी। तो जब 1 1 ऑन 2 यहाँ पर स्पेसिफाइड कर दिया जाएगा, तब वहां पर रिक्वायरमेंट होगी कंडीशन। बट यदि कुछ भी नहीं मेंशन है तो फिर कोई रिक्वायरमेंट है क्या? नो सर। तब तो नहीं। यदि यहाँ पर बोला जाए ऑन टू होगा, 1 1 होगा ट्रांसफॉर्मेशन, तब फिर कंडीशंस आएंगी एम और एन में। ठीक है ना। सर उस केस में n लेस देन भी m हो सकता है और n ग्रेटर देन m दोनों हो हाँ, सकता वही है। सेम कंडीशन होंगी जो आपकी फंक्शन में होती है। फंक्शन में क्या कंडीशन होती है ऑन टू होने के लिए? यहाँ पर ऑन टू होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि m इज लेस देन इज इक्वल टू ग्रेटर n। यस। और 1 1 होने के लिए देखिएगा, यहाँ पर यदि मान लेते हैं जैसे R2 ओवर R3 है, टी ट्रांसफॉर्मेशन है R2 से R3, राइट। यहाँ पर 1 1 तो कोई दिक्कत नहीं, बनाया जा सकता है कि टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई 0 1 1 होगा या नहीं होगा? यस सर 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं। नहीं, ऑन टू या नहीं पॉसिबल होगा। यदि मैं R3 से R2 करूं तब ऑन टू पॉसिबल होगा।
Yes sir, onto तब possible 1 होगा. 1 नहीं पॉसिबल होगा. Yes. तो वही सेम कंडीशन से आपके फिर पास वन वन ऑन और टू के लिए तो फिर बराबर होनी पड़ेगी. हाँ, दोनों एक साथ होने के लिए वो इक्वल होना पड़ेगा. जैसे 1 1 ऑन 2 दोनों एक साथ हुआ तो फिर क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे दोनों वेक्टर स्पेसेस. यस सर. हो जाएंगे ना. तो यहाँ पर एक और एग्जांपल, इफ ए बी आर फिक्स्ड एनी फिक्स्ड मैट्रिक्स, ए बी आर फिक्स्ड m cross n matrix, right? With entries from field f, right? कोई field f से entries है. Now define t of t from f n cross 1 to f n cross 1. T of x is equal to ax. It's a linear transformation or not? Yes sir. क्योंकि यहाँ पर m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पर जो भी आएगा x वेक्टर होगा, x की डायमेंशन क्या होगी, n क्रॉस 1 होगी. इस फील्ड से है, n क्रॉस 1 होगी ना. ये f n क्रॉस 1 का मीन्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम होंगी या रो होंगी. मतलब इस एक कॉलम होगी, मल्टीपल रो होगी, m रो होगी. हाँ, n कॉलम्स यानी कि जो डोमेन है वो कॉलम मैट्रिक्स है. तो यहाँ पर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा. And we define S from f m to f n s of x, s of some x is equal to xa. This is a linear transformation. यस सर. क्लियर है. सर ये एस वाला बताना कैसे होगा, लाइक देखिएगा एस में जो हमारे पास डोमेन में कोई वेक्टर x है वो किस टाइप का होगा, a1 a2 एंड सो ऑन an, राइट. यस सर. तो जब इसमें प्रोडक्ट करेंगे एक्स ए फाइंड करेंगे तो इसमें प्रोडक्ट क्या आएगा, कोई मैट्रिक्स होगी m क्रॉस n की. तो यहाँ पर फर्स्ट रो का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एलिमेंट मिलेगा पहले, फिर सॉरी फर्स्ट कॉलम का, फिर सेकंड कॉलम का करेंगे. यहाँ पर रो तो एक ही है ना, तो ऐसे एलिमेंट्स मिलते रहेंगे. कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, इसमें कितने कॉलम है, n कॉलम है, n वैल्यूज मिलेंगी ना, लीनियर कॉम्बिनेशन. Yes. तो यहाँ पर जो भी वेक्टर आएगा ये f ऑफ x, उसमें क्या होगा, कितने टपल्स होंगे, n टपल्स होंगे ना, एग्जैक्टली n टपल्स होंगे. Yes sir. तो वेक्टर स्पेस बनाएगा नहीं बनाएगा, रेंज इसकी इससे n से तो ज्यादा नहीं हो सकती ना. No sir. बाकी डिपेंड करता है, यहाँ पर कोई कॉलम जीरो भी हो सकता है मैट्रिक्स का, या एक्स कोई वैल्यू जीरो हो सकती है तो जीरो हो सकते हैं, बट वहां पर टपल्स एग्जैक्टली n आएंगे, इस तरह से आएंगे. वो जीरो भी आ सकते हैं, उसमें कुछ डाउट. क्लियर सभी को. बट यहाँ पर
ए बी आ फिक्स्ड मैट्रिक्स है, बट यहाँ पर ये भी कंडीशन होनी चाहिए कि ए आर नॉन जीरो मैट्रिक्स, राइट। यदि ए जीरो मैट्रिक्स हो गई तो फिर ये क्या हो जाएगा, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। If A be a zero matrix, then this is a zero transformation, right? If A is non-zero, then this is a not zero transformation. Clear है? यस सर। और वो तो डिटरमिनेंट से डिफाइन करेंगे ना? नहीं, डिटरमिनेंट से जीरो होने का ना होने का, यहाँ पर देखिए डिटरमिनेंट जीरो नहीं भी हो भी जाता है तो उससे कोई इशू है क्या? हाँ, इसका इनवर्स से फाइंड करना नहीं पॉसिबल होगा ट्रांसफॉर्मेशन का, बट यदि ए का डिटरमिनेंट जीरो होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन तो एग्जिस्ट करेगा ना। डिटरमिनेंट जीरो होने का मीन्स क्या है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू इज जीरो। डिटरमिनेंट जीरो होना क्या मैट्रिक्स जीरो होना दोनों सेम है? नो सर। दोनों डिफरेंस है। नॉन जीरो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो हो सकता है ना? यस सर। तो नेसेसरी तो नहीं है। ओके सर। डिटरमिनेंट से जीरो भी होगा तब भी डिफाइन हो सकता है ना वेक्टर स्पेस, या नहीं हो सकता है बताइए? जीरो के केस में भी हो सकता है, बट जीरो में जीरो ही हो जाएगा फिर वो। ज्यादा कोई डाउट किसी को? बताएं। नो सर। Now we define a vector space T from some vector space of Vn R, that is means polynomials to R n plus 1 over R, where Vn over R this equal to polynomial up to n degree, a naught, a1x and so on up to an x to power n, and all ai's comes from real number. This is a vector space. Then we define a transformation T of Px, that is equal to, we map to this coefficients a1 to an. This is a linear transformation. Yes, sir. Or this is a 1 1 on 2 or not? Not 1 1 on 2. This is both Yes. 1 1 and on 2, right? Because of if two polynomials are distinct, then at least one ai is not equal. If one ai is not equal, then image is also distinct, right? यदि दो पॉलिनोमियल इक्वल हैं नहीं है यहाँ पर, तो कोई ना कोई एक कोएफिशिएंट डिस्टिंक्ट होगा, किसी भी पावर का हो सकता है या कांस्टेंट डिस्टिंक्ट हो सकता है, होगा ना? तो उनकी इमेजेस भी डिस्टिंक्ट आएंगी और सभी n+1 टपल्स के लिए कोई ना कोई एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगी यूनिक। क्लियर है? तो ये 1 1 on 2 होगा। यस सर। ओके, 1 1 on 2 होगा। Now we define next
example, let R be the field. R field है जो कि रियल नंबर की है. R be the field of real numbers and let V be the vector space of all function from R to R which are continuous. That means V is a function over R, it's a real number. This equal to collection of all functions from real to real and continuous. यही है ना वेक्टर स्पेस. Yes, sir. Then we define a T of fx equal to integration 0 to x f t dt. This is a vector space or not? Vector space. Sorry, this is a transformation or not? ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना. Yes, sir. कि 0 तो 0 पर मैप होगा. यदि स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं फंक्शन में तब क्या होगा? लेट f कॉमा z बिलोंग्स टू b, वेक्टर स्पेस में बिलोंग कर रहे हैं. देन t ऑफ f प्लस g दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू x f प्लस g dt. So this equal to integration 0 to x. Integration is distributive and addition. So this equal to t of f plus t of g. होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाइड है. Yes, sir. इसमें कोई डाउट है किसी को? अल्फा कोई रियल नंबर है एंड f बिलोंग्स टू v कोई फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस एंड t ऑफ अल्फा f दिस इक्वल टू 0 टू x alpha of f dt this equal to alpha of 0 to x f dt this equal to alpha t of f. क्लियर है सभी को? दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. Yes, sir. होगा. सर ये लिमिट आपने लिमिट नहीं रखी है इसमें. हाँ क्या कह रहे हैं? लिमिट भी रखी जाएंगी ना ये. नहीं लिमिट ये तो मैंने फाइनली ये विद लिमिट है ना t ऑफ f की जो वैल्यू है. t ऑफ f क्या डिफाइन है? ये जो डेफिनेशन ये डिफाइन किया है यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट नहीं किया फंक्शन को. अच्छा डायरेक्ट वैल्यू पुट की है इनकी. हाँ डेफिनेशन में क्या है? t ऑफ f इज इंटीग्रेशन ऑफ f ओवर dt. ओके ओके. तो जो भी आएगा इंटीग्रेशन वो इसकी इमेज होगी. t ऑफ f होगा तब t नहीं होगा ना इंटीग्रेट कर देंगे. नेक्स्ट
T from V over R to R2 over R. V over R मीन्स क्या होगा पता है ना? पॉलिनोमियल्स हैं. T of Px is equal to P of 0 comma P of 1. This is a vector space or not? वेक्टर स्पेस यहाँ पर क्या है ये कैसे यहाँ पर मैप करा रहे हैं कि जीरो वैल्यू पुट करके जो भी वैल्यू आएगी उस पर मैप करा रहे हैं कांस्टेंट पर. ये मैनी वन हो जाएगा या 1 1 होगा? मैनी वन एंड ऑन टू होगा ना, क्योंकि यस सर मैनी वन ऑन टू नहीं होगा सर. ऑन टू होगा एंड मैनी वन होगा, 1 1 नहीं होगा. यदि यहाँ पर V की डायमेंशन कोई भी हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, मैनी वन हो जाएगा. एंड इफ सर ऑन टू होगा नहीं होगा? बताइए ऑन टू होगा. यदि आपको लग रहा है तो कोई ना कोई एक आप ऐसा पॉलिनोमियल बताइए दो जिनका इमेज सॉरी ऐसा कोई नंबर बताइए इसमें रेंज में जिसके लिए कोई पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करेगा. ऐसा पॉसिबल है क्या? आप कोई भी बताइए. यहाँ पर आप पाएंगे 0.1 0.2 उसके लिए भी मैं पॉलिनोमियल ले सकता हूँ. कोई बताइए ले सकते हैं या नहीं? मैं यहाँ पर ले लूंगा 0.1 प्लस 0.1x. यदि मैं 2 डायमेंशन की बात अप टू 1 डिग्री पॉलिनोमियल कंसीडर करूं तब भी मिल जाएगा. बाकी 0 ले लूं अगर आप इससे हायर डिग्री ले रहे हैं तो इसका इमेज क्या आएगा? यही आएगा ना. 0 पर वैल्यू 0.1 0.1 और 1 पर वैल्यू 0.2 आ जाएगा. 0 1 पर 0 कैसे आएगा? यस सर 0.2 0.2 आएगा ना. 0.1 प्लस 0.1 तो सभी रियल के एग्जिस्ट कर जाएगा या नहीं करेगा? यस सर. तो कोई भी आप रियल नंबर बताइए उसके लिए एग्जिस्ट कर जाएगा तो ये ऑन टू हो जाएगा. किसी कोई डाउट है? किसी कोई डाउट है? नो सर. Now we define a transformation from Rn cross n over R to R. ये क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल रियल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. Now T of A is equal to A transpose vector space R n क्रॉस n टू R over R है. यहाँ पर जो ये मैट्रिसेस होंगी क्या होंगी? स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ n क्रॉस n. तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? यहाँ पर इसमें क्या कर रहे हैं? रो होगा सर. इंटरचेंज कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये होगा वेक्टर स्पेस. यस सर. होगा. एक क्वेश्चन है, यही सेम ट्रांसफॉर्मेशन है यानी कि T ओवर M मैट्रिसेस ऑफ n क्रॉस n ओवर R mn क्रॉस n ओवर R then T of A
इज इक्वल टू, इसको आपको आंसर बताना है कि 0 व्हेन A ट्रांसपोज इक्वल टू A and A otherwise or else. This is a linear transformation or not. इसका आंसर बताना, क्या कोई बता सकता है? ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? यस एंड नो में किसी के पास आंसर है? सर ए जीरो मैट्रिक्स होगी तभी तो उसका ट्रांसपोज जीरो के बराबर होगा। नहीं, यहाँ पर क्या दिया कि जीरो जब जब आ रहा है, जब जब वो ट्रांसपोज इक्वल है, मीन्स क्या हुआ इसका? सिमेट्रिक हुआ ना। यस सर। सिमेट्रिक को क्या कर रहा है कि जो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे, तो इसमें सिमेट्रिक भी होंगी, इसकी सिमेट्रिक भी होंगी, ऐसी भी होंगी जो कुछ भी नहीं है इसमें से, ऐसा भी है ना, क्योंकि सभी सर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसमें वो स्केलर वाली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। फॉलो नहीं होगा। स्केलर वाली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही। नहीं हो जाएगी सर, हो जाएगी। हो जाएगी सर मुझे लगता है होगा सर। और सभी का आंसर यही है कि होगा। होगा। किसी का आंसर है, कोई ऐसा है जो जिसका आंसर आ रहा हो नहीं होगा? है किसी का आंसर? बता सकते हैं? सर स्केलर वाली नहीं हो रही फॉलो, लाइक अल्फा टाइम्स ए मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इक्वल्स टू ए आ रहा है वैल्यू, अगर सिमेट्रिक नहीं है मैट्रिक्स। फिर से बोलना, क्या कह रहे हैं आप? अगर अल्फा टाइम्स ए कर ले, ये मैट्रिक्स है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, तो उसकी वैल्यू ए होगी, उसकी वैल्यू ए होगी। ये आप कह रहे हैं ना, टी अल्फा अल्फा टाइम ए इज नॉट सिमेट्रिक, राइट? तो ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यस ये होना चाहिए। यस ये इक्वल नहीं होगी ना। नहीं है इक्वल। यस कैसे? देखिए, आप किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करने से सिमेट्रिक या इसकी सिमेट्रिक कंडीशन चेंज होती है? नहीं होगी सर चेंज। नहीं होगी। क्यों? यदि मैं नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं, सिमेट्रिक की कंडीशन चेंज हो जाएगी? नो सर। सिमेट्रिक वाली कंडीशन में दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाएगी, बट जो मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स नहीं है उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू ए हो रही है ना सर, तो उस केस में दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही है। नहीं हो रही। यहाँ पर ठीक है,
अब मैं ले रहा हूं कि ए कोई मैट्रिक्स है सच दैट ए बिलोंग्स टू एम एन क्रॉस एन एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। यदि इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करें तो कोई इशू आएगा नहीं इसमें, ठीक है, ये फॉलो हो जाएगी। आप किस में कह रहे हैं नहीं फॉलो हो रही है? सर जब मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, ए नॉन सिमेट्रिक है, मींस ए ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू ए, यही तो कंडीशन होगी ना। बाकी कोई भी हो सकती है। इसमें क्या फेल हो रहा है बता सकते हैं कोई? कुछ भी फेल हो रहा है, स्केलर या कॉम्बिनेशन, यहाँ पर कुछ भी फेल हो रहा है। कोई तो मैट्रिक्स एक भी अगर फेल कर जाती है तो फिर ये नहीं होगा ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कोई बताएगा? कोई एक कंडीशन या पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए। क्या कह रहे हैं? स्केलर मल्टीप्लाई उसको सिमेट्रिक बना सकते हैं। वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका, फिर बोलिए क्या कह रहे हैं? सर किसी नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई स्केलर मल्टीप्लाई करके उसको सिमेट्रिक बना सकता है। पॉसिबल है क्या? वो सिमेट्रिक बन जाएगी लेकिन सिमेट्रिक तो नहीं बनेगी वो। नहीं, स्केलर मल्टीप्लाई करने से सिमेट्रिक नहीं बन पाएगी। स्केलर में क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? ये यदि स्रोत मैं कोई फैक्ट एग्जांपल 2x2 की मैट्रिक्स लूं, ठीक है ना, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रहे हैं कोई, यही मान लेते हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है। अगर कोई नॉन सिमेट्रिक लेते हैं, ये इसको क्या सिमेट्रिक बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। कोई स्केलर का मल्टीप्लाई करके। नो सर। नो सर नहीं। क्या कोई मैट्रिक्स ए है, ए को ऐसे लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है? यस यस सर। दोनों साइड ट्रांसफॉर्मेशन लो, क्या आएगा? अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, होगा ना? यस सर। और ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट वाला, ये जीरो पे जाएगा। क्योंकि ए प्लस ए ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज करो तो क्या आएगा? ए ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए इक्वल आ गया, ए ट्रांसपोज। ये जीरो आ जाएगा। यस सर। तो ये बताइए क्या इक्वल है? और ये इसके अकॉर्डिंग कहाँ चला जाएगा? इक्वल होंगे। या इस पे जाएगा ना? कोई भी मैट्रिक्स है जो नॉन ट्रांसपोज है वो इस पे जाएगी या जब मैप होगी या नहीं होगी?
इस पे मैप होगी। ये भी ये ए पर तो चला जाएगा कि नहीं जाएगा सर एक बार बताइए। रिपीट करना। क्या कह रहे हैं? ये कभी फेल करेगा या नहीं करेगा, या रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन? दिस इज ट्रू और फॉल्स। इसका आप आंसर सॉल्व करना, अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, उस पर ट्रू और फॉल्स क्या होगा, ठीक है ना। दूसरा इसी में, पहला ये था, दूसरा है कि टी ऑफ ए है दिस इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 पर और मैट्रिसेस को मैप करा दिया, ठीक है ना। ये भी ट्रू एंड फॉल्स। ये दूसरा आ जाएगा किसी को? ये ट्रांसफॉर्मेशन ट्रू है या फॉल्स है, क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। दो और लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर टी फ्रॉम डोमेन एम क्रॉस एम एन क्रॉस एन मैट्रिसेस ओवर आर टू आर ओवर आर, ठीक है ना, दोनों वेक्टर स्पेस हैं। तो टी ऑफ ए कोई मैट्रिक्स होगी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। सेकेंड, टी ऑफ ए mod of A, which of the following is true? A, both RLT, linear transformation. B, only first is LT. C, only second is LT. किसी को इसका आंसर पता है? थर्ड NOT, none of these. ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके। मीन्स आपने कहा कि फर्स्ट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सेकंड यस नहीं सर। है, ये कह रहे हैं। सेकंड नो। सेकंड, सेकंड के लिए क्या कह रहे हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। Multiplication property does not hold. If alpha take negative, Okay. then second property does not hold. Yes. Means if we take alpha less than 0, then T of alpha A is equal to mod of alpha A, then alpha बाहर आएगा, वो क्या आएगा? अल्फा ऑफ मॉड ऑफ, यानी कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए आएगा ना। यस सर। मल्टीप्लाई कीजिए, करें करें मल्टीप्लाई। ये कब नहीं होल्ड करेगा, किस केस में? यदि ए मैट्रिक्स है, ए के पास कुछ n आइगन वैल्यूज होंगी, आइगन वैल्यूज क्या होंगी? अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n, ऐसी कुछ होंगी, कुछ यूनिक होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी, मुझे नहीं पता। यदि अल्फा नेगेटिव से आपने मल्टीप्लाई किया तो इनके सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। यस सर। और यदि ये हमारे पास जो ये कहाँ मैप हो रहा है, डिटरमिनेंट्स पर मैप हो रहा है, यदि n इवन है तब तो कोई इफेक्ट आएगा क्या?
मॉड ऑफ ए क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल ए आईज आई इज इक्वल टू 1 टू एन, एन इवन है तो ये हमारे पास पॉजिटिव नहीं रहेगा क्योंकि अल्फा को एन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। यदि एन ऑड हो गया तो फिर ये क्या है, कहां पर पहुंच जाएगा, ऑड पर पहुंच जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऑड के केस में नहीं करेगी ना होल्ड प्रॉपर्टी। यस सर। बट यहाँ पर एम एन क्रॉस एन तो फिक्स नहीं है, इन जनरल पूछा गया है। ट्रेस में क्या होगा, ट्रेस तो हो जाएगा ना, ट्रेस वाले केस में ट्रू है। देन यस सर। बी इज ट्रू राइट। यस सर। Anyone have different option which is right? बताइए किसी के पास कोई ऑप्शन दूसरा हो तो सही हो। कोई दूसरा ऑप्शन सही हो किसी का, है क्या? कोई अदर ऑप्शन ट्रू है किसी का? Now we define यहाँ पर क्वेश्चन है if t from R2 over R to R2 over R, which of the following is linear transformation? First, t of x1 or we write x y is equal to x plus 1 y. B option, this is t1, t2 xy equal to x upon y and under root y. Next, C, t3 xy is equal to root 7 x minus y pi y. Yeah. D option, none of the above. What is the answer? T is R2 to R2, T is Ti. We have defined Ti. T1, T2, T3. Which of the following is linear transformation or none of these are Option B. not linear transformation? D सर। क्या कह रहे हैं?
D option. D option, none of these. Yes sir. सभी का D है। किसी का कोई आंसर चेंज है इसमें? बताइए। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। यस। आपका बी है, एक लोगों का डी है, और किसी का कोई आंसर? आपने बी बोला ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या मैं y को 0 ले लूं, ट्रांसफॉर्मेशन होगा? 0 not defined. 0 No, भी no, नॉट no. डिफाइंड हो जाएगा, बट यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं मेंशन है, तो ये नहीं होगा ना। Yes sir. ओके सर डी होगा, डी। डी होगा, ओके। बी तो नहीं होगा। अच्छा, ए क्यों नहीं होगा, कोई बताएगा? Additive identity does not exist. सर एक्स। Additive identity does not exist, okay, right. सी क्यों नहीं होगा? ए में क्या हुआ, आइडेंटिटी नहीं मिली। बी में y x, 0 टाइप के एलिमेंट्स की कोई भी इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है ना। बट सी में क्या है, सी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन ही ट्रू है। अब किसका नहीं आ रहा है सी ट्रांसफॉर्मेशन, ये T3। ये बताइए, स्केलर के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड है T3 में? Yes sir. यदि मैं दो वेक्टर लूं T3 ऑफ x1 y1 प्लस x2 y2, राइट, तो ये ऐड हो जाएंगे ना, x1 प्लस x2 रो में एंड y1 प्लस y2 दूसरे रो में आ जाएगा। तो इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, √7 x1 प्लस x2 माइनस y1 प्लस y2 ब्रैकेट में एंड पाई ऑफ y1 प्लस y2, इसको ब्रेक करके लिखा जा सकता है √7 x1 माइनस y1 पाई y1 प्लस √7 x2 minus y2 pi y2, so this is T3 of x y1। ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, कोई डाउट है किसी को? होगा। ट्रांसफॉर्मेशन, Yes sir. सी ऑप्शन इज करेक्ट, या किसी का कोई चेंज है आंसर? तो दो जो लास्ट एक क्वेश्चन है उस पर करना ट्राई कि उसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है ना। ठीक है, इसके आगे और स्टार्ट करें क्लास या यहीं तक रखें आज? यहीं तक रखते हैं सर, वॉइस ब्रेक हो रही बीच बीच में।